Good morning students. Today we are going to read our textbook's chapter Hassan's attendance problem. Okay, this is the first chapter of our textbook part section A. Hassan's attendance problem chapter is written by Sudha Murthy. So let us start reading. First of all, I want to tell you about what is in the chapter. This is the story of a boy Hassan. As the title of the chapter shows us, story of a boy Hassan. Which kind of boy he was and how his attendance performance in his college. Let us see. This is a chapter written by Sudha Murthy, who was a teacher, computer science teacher in Hassan's college. For many years now, I have been teaching computer science to students studying for their masters in computer applications at a college in Bangalore. काफी सालों तो मैं इस कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन कॉलेज बैंगलोर ਦੇ ਵਿੱਚ कंप्यूटर साइंस टीच कर रही हूँ. I have interacted with many students, and though it is not possible to remember all of them, now the memories of some are etched in my head. सुधा मूर्ति कह रही है कि क्योंकि पॉसिबल नहीं हैगा सारे बच्चों को याद रखना, पर उन्होंने विचों कुछ बच्चे यही जे होंदे ने जिन्हां दी मैमरी दिमाग दे विच अपने आप ही घर कर जाती है. That is not because they are all brilliant. इसलिए नहीं कि वो सारे brilliant होंदे ने, मींस ज्यादा होशियार बच्चे ही टीचर को याद रहते हैं, but rather because something in them was different from the others. पर इस करके क्योंकि उन्हां दे विच कुछ बाकियां नालों अलग हुंदा है. In my first batch, there was a very bright boy called Hassan. मेरे पहले बैच दे विच एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट सी जिसका नाम सी हसन. He was tall, handsome, with a very good memory. He came from an affluent family where he was the only son. वो एक अच्छे प्रभावपूर्ण फैमिली चों मींस चंगे घरों आया हुआ सी. Initially, I did not come to know of his existence at all, mainly because he was hardly ever present. सुधा मूर्ति जो टीचर है वो कह रही है कि स्टार्टिंग के विच तां मैनूं पता ही नहीं सी कि हसन नाम का कोई स्टूडेंट मेरी क्लास च नहीं हैगा. ਇਹਦਾ कारण की सी क्योंकि उस क्लास च बहुत घट प्रेजेंट रहता सी. I normally take the first class of the day, which is scheduled at 9 AM or the one after that at 10 AM. ज़्यादातर मेरी क्लास सवेरे 9 बजे की या 10 बजे की होंगी. I prefer this time as this is when students are fresh and very attentive. मैं इस टाइम को प्रेफर करती हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स इस टाइम के विच ज़्यादा फ्रेश ते अटेंटिव ध्यान देते हैं. Once in a while, Hassan would turn up, particularly if there was a class test or during examination. वो कहते ज़्यादातर हसन कदों आंदा जाता वो क्लास टेस्ट होंगे थे जहाँ एग्जाम होंगे. I met him more often for attendance shortage meeting. ज़्यादातर मैं वो कदों मिलती है थी attendance shortage meeting क्योंकि की होता वो attendance घट होंगी. He would beg for attendance in such a manner that it was very difficult for me to say no. वो attendance के लिए इस तरह मिन्नत करता कि मेरे लिए उन्हें मना करना औखा हो जाता. Sometimes I would get upset and tell him, no, I can't give you attendance. There should be discipline. वो कहती कदे-कदे मैं उन्हें तो परेशान हो जाती थी, मैं उन्हें जवाब दे देती. मैं उन्हें कहती कि मैं तेरी अटेंडेंस पूरी नहीं कर सकती, तेनू डिसिप्लिन दे विच रहना होना चाहिए है. Yes, madam. He would reply apologetically. Apologetically means माफी मंगदे हुए हैं. वो कहता हाँ जी मैडम, pardon me. From the next semester onward, I will definitely attend your class. इस बार मैंने माफ कर दियो, अगली बार तो पक्का मैं रेगुलर क्लास के विच होऊंगा. Can you not pardon me this time? कि तुसी मेरे इस बार माफ नहीं कर सकते. To err is human, to forgive is divine. You have only taught us this. वो की कहता कि मनुखा जिहड़ा to err is human, मनुखा जिहड़ा वो गलतियां दा पुतला आ ते जिहड़ा माफ कर दिंदा आ वो एक दैवी आत्मा होंदी है. ते तुसी भी ये सानू सिखाया मींस अपने टीचर की गल की ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ
I could not remain angry for long. सुधा मूर्ति कहती कि मैं ज्यादा देर तक ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ना रह सकती. Teachers do get upset with students who are not regular, but if the attendance shortage affects their appearance in the final examination, one tends to melt like snow against the sun. वो कहते ज्यादातर टीचर गुस्सा होंगे ने अपने बच्चों को जे रेगुलर नहीं होंगे, पर जेकर अटेंडेंस शॉर्टेज के नाल उन्हां दी लाइफ के ऊपर उन्हां दे फाइनल एग्जामिनेशन के ऊपर फर्क पैंदा तां टीचर ऑलमोस्ट बिल्कुल बर्फ की तरह पिघल जाते हैं. A good teacher will always wish for the best for her student. Though I do agree discipline is very important too. वो कहते जिहड़ा एक चंगा अध्यापक हुंदा वो हमेशा अपने बच्चे दे अपने स्टूडेंट्स दे वधिया बारे सोचदा है. चाहे मैं भी इस गल नूं मनदी हां कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है. As he was very bright, Hassan would invariably get a first class in the exam. However, before the exam started every semester, this drama with Hassan would be repeated. I would get upset, threatened, and ultimately give in. वो कहते क्योंकि हसन एक ब्राइट स्टूडेंट सी, वधिया स्टूडेंट सी, इसलिए की हुंदा वो हमेशा फर्स्ट डिवीजन दे विच पास हो जाता ते हर पेपरां तो पहला ओहदा यही ड्रामा चलदा. वो इदां ही मिन्नतां करदा, मैं उहनूं डराउंदी धमकाउंदी ते उस तों बाद मैं उहदी अटेंडेंस पूरी कर दिंदी. Each time Hassan would promise to improve his attendance record and for 1 week would attend in all classes. हर बारी वो प्रॉमिस करता मेरे नाल ते एक हफ्ता रेगुलर क्लास लगाता भी. द सेम ओल्ड स्टोरी वुड फॉलो ते फिर वही पुरानी कहानी शुरू हो जाती. Each time he had a different reason for his absence. Unfortunately, they always seemed genuine to me. हर बारी वो कोई नवा बहाना लगाता ते बदकिस्मती दे नाल उहदा हर बहाना मैनूं सही लगदा, जेन्युइन लगदा. Once I got tired of his stories and called his parents. एक बारी मैं उहदी कहानियां तो तंग आ गई ते मैं उहदे पेरेंट्स नूं बुलाया. Your son is a bright boy. He is not arrogant, but he is indisciplined. तुहाडा सन आ जिहड़ा वो arrogant नहीं हैगा बट इनडिसिप्लिनड है. मीनस सुभाव दे विच वधिया है पर हमेशा इरेगुलर रहता है. If only he come to class regularly and attend the lab, I am sure he can get a rank. वो कहता जी टीचर कहती है अपने पेरेंट्स को कि जे रेगुलर आवे ते लैब्स अटेंड करे तां मैनूं पूरी उम्मीद आ कि अच्छा रैंक भी ले सकता. I have failed to convince him. I will be happy if you could look into the matter more seriously because this is going to affect his life. I said to them. वो कहती मैं अपने पेरेंट्स को कहा कि बहुत वधिया होएगा जे तुसीं इस मामले दे वल ध्यान दिओ. मींस हसन नूं रेगुलर करो. Hassan's father was a busy man and did not take my words very seriously. Hassan ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ busy person ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ seriously ਨਾ ਲਿਆ. He said, as long as he does well, that is fine with me because after a certain age, children do not listen to their parents. Only life will teach them. ਉਹਦੇ father ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ. ਬਟ ਹਿਸ ਮਦਰ ਵਾਸ ਇਨ ਟੀਅਰਸ. ਪਰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ. ਮੈਡਮ, ਆਈ ਹੈਵ ਫੇਲਡ ਐਜ਼ ਏ ਮਦਰ. ਹੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ ਐਟ ਆਲ. ਹੀ ਸਪੈਂਡਸ all night listening to music and chatting with his friends. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ. ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰਦਾ ਆ. he sleeps at 6 in the morning. ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ. how can he come to any class? ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? he does not pay any attention to what I say and tells me I repeat the same thing always. ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ. The meeting ended in an argument between his parents. His father said, "You are a mother. It is your duty to correct him. You should spend more time with him. I am so busy. You have failed." ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ. ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਏਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ.
This continued for a while and the meeting ended fruitlessly. थोड़ी देर तक इस तरह चलता रहा ते अंत दे विच बिना किसी नतीजे तो मीटिंग खत्म हो गई। Hasan continued his Hindi way till he passed out his course as usual in first class. ते हसन अपना कोर्स इसी तरह ही पूरा कर गया। He was a nice boy. He came and thanked me. वो एक बढ़िया लड़का सी, मेरे को आया ते उन्हें मेरा धन्यवाद किया। मैडम, thank you for teaching me for the last 3 years. Because of your kind heart, I could get all my attendance. I wish all teachers were like you in the college. I laughed. आगे टीचर कहता कि तुहाडी वजह दे नाल मैनूं अटेंडेंस मिल जाती ते मैं विश करदा कि सारे टीचर तुहाडे वर्गे कायम होण। गॉड विलिंग वी विल मीट अगेन। परमात्मा ने चाहा तो असीं दोबारा मिलांगे। बट आई डिड नॉट मीट हसन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फॉरगॉट ऑल अबाउट हिम। वो कहती मैं काफी लंबे समय तक हसन नूं नहीं मिली ते उहदे बारे सब कुछ भुल गई। Years passed. I taught many students. Some of them became very good human beings. Some became famous, some became rich, and some remained ordinary. सालां बीत गए, मेरे पढ़े हुए स्टूडेंट्स कुछ बहुत वधिया इंसान बन गए, कुछ बहुत फेमस हो गए, तो कुछ कॉमन ही रह गए। As far as I was concerned, they were like my children. मेरे लिए सारे मेरे बच्चों की तरह सन। Some remember me still and send invitations to weddings, naming ceremonies, housewarmings, etc. उन्होंने विचों कुछ ने मैंने याद रखा। वो उन्होंने घरे कोई भी फंक्शन होंगे, कोई नेमिंग सैरेमनीज होंदियां, उन्होंने विआह होंगे जां उन्होंने घर के मुहूर्त होंगे तो मैनूं सददे। If I am in town, I definitely try and attend because for me their immense love is my strength. जे मैं शहर के विच हुंदी तां मैं जरूर उन्हां दी हरेक मौके ते पहुंचदी क्योंकि मेरे लिए मेरे जिहड़े विद्यार्थी ने वो एक strength ने मिली। One Monday morning, my secretary told me that a person wanting to sell the latest software in high school teaching wanted to meet me. एक मंडे मॉर्निंग नूं मेरी सैकटरी ने दस्सिया मैनूं कि एक पर्सन जिहदे कोल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आ मैनूं मिलना चाहुंदा है। I was extremely busy and the piles of unanswered letters were looking at me accusingly. I had no time to talk to a salesperson. वो कहती मेरे अगे चिट्ठियां दा ढेर लग्या पिया सी जिन्हां दे मैं जवाब देने सी, इसलिए मैं उस नाल गल नहीं कर सकती सी। So I told her you can meet someone else. I don't have time. इस करके उन्हें कह दिता कि वो किसी होर नूं मिल गए ते मेरे कोल टाइम नहीं है। But my secretary said he was insisting he wanted to meet only me, that he was my student. पर मेरी सैकटरी ने दस्सिया कि मेरा एक स्टूडेंट था ते वो मैनूं ही मिलण लई जोर पा रहा है। She knew how fond I was of all my students, so she had not been unable to say no to him. ते वो जानती सी कि मैनूं अपने विद्यार्थियों का कितना शौक रहता हमेशा, इस करके उन्हें मना नहीं किया। In that case, let him see me at 2 PM. कहती अच्छा फिर वो कहीं मेरे दोपहर 2 बजे मिले। In the afternoon, a man of about 35 years, plump with a bald head and moderately dressed, was waiting for me in the office. इस तरह कहती दोपहर वेले एक 35 ईयर का ओल्ड पर्सन, थोड़ा गोल मटोल, बार्ड हेड मींस गंजे सिर वाला ते मॉडरेटली ड्रेस्ड मींस ठीक ठाक कपड़े पाए हुए सी ਉਹਦੇ मेरे ऑफिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ इंतजार कर रहा सी। In his hand was the CD with the software. I could not place him though he seemed familiar. ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੀ। He smiled at me and said, "Madam, can you recognize me?" वो मेरे वाल देख के हंसिया तो उन्हें कहा, "मैडम तुसी मैनूं पहचानिया?" You may not, because how can you remember all your students? From a window you can see the outside world, but from the outside you cannot see all that is inside. वो कहता तुसी किवें पहचान सकते हो क्योंकि विंडो तो तुसी आउटसाइड वर्ल्ड देख सकते हो पर आउटसाइड वर्ल्ड तो तुसी इनसाइड किवें देख सकते हो। I liked his analogy and was sure he was my student. मैनूं उहदी एनालॉजी पसंद आई ते मैनूं श्योर सी कि मेरा स्टूडेंट है बिकॉज आई ऑफन यूज दिस फ्रेज इन माई क्लास क्योंकि मैं अपनी क्लास के विच यह शब्द यूज करती सी। स्टिल आई कुड नॉट गैस हू ही वाज, फिर भी मैं गैस नहीं लगा सकी कि वो कौन सी। मैडम आई वाज द परपेचुअल लेट कमर ऑफ योर क्लास, मैं आमतौर पर तुहाडी क्लास के विच लेट आने वाला सी। दैट्स व्हेन द पॉइंट ड्रॉप्ड, जिवें सिक्का डिग गया भाव मैनूं एकदम याद आया। हाय हसन, हाउ आर यू? हसन तू किवें आ? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई लास्ट मेट यू। आई वाज वेरी हैप्पी टू सी
बहुत समा हो गया मैंने मिले नूं, पर मैं उन्हें देख के बहुत खुश हुई। मैडम आई एम फाइन एंड रिमेंबर मैनी ऑफ योर लेसन्स, इज इट डेटाबेस मैनेजमेंट और सी और फास्ट। वो कहता मैं ठीक हाँ ते मैंने तुहाडे बहुत चैप्टर ने जिहड़े याद नहीं, नन ऑफ द सॉफ्टवेयर मैडम आई रिमेंबर द मॉरल लेसन्स। वो कहते वो पुछदी आ कि आ वाले सॉफ्टवेयर दे, वो कहते नहीं नहीं मैंने तुहाडी मॉरल जिहड़ी सिक्ख्या दित्ती तुसीं मैनूं। I did not know what moral lesson I had taught, though I do tell some stories during my lectures on computer software. Hassan, what are you doing now? Now his face became a little pale. वो जब हसन तो पूछती है कि तुसी हुण की कर रहे हो, तो हसन का चेहरा पीला पै जाता। मैडम आई एम सेलिंग दिस सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूजफुल इन टीचिंग मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. It is of help of both teachers and students. I know your foundations help a lot in education at the high school level. I thought it may be of some interest to you. Hassan, what did you do for so many years? वो पूछती है, वो दसदा है कि मैं इस तरह सीरीज सॉफ्टवेयर बेच रही हैं जिहड़ी टीचर्स ते स्टूडेंट्स लिए बहुत फायदेमंद है। तो वो कहता वो पूछती है कि तुमने सारा की कीता। आई न्यू ऑल हिज क्लासमेट्स बाय दिस टाइम वर इन वेरी हाई पोजीशंस इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. Hassan, being a bright student, should have definitely done well. Yet, on the contrary, he seemed to be doing a small job of selling high school software door to door. Madam, you know, I was irregular in college. The same habit continued even after my graduation. इस तरह हसन दी टीचर नूं याद आ गई उहदे नाल दे जिहड़े उहदे क्लासमेट्स ने बहुत अच्छे रैंक अच्छे कंपनीज दे विच जॉब्स कर रहे हैं, कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, बहुत वधिया कमा रहे हैं। बट हसन एक छोटी जी जॉब कर रहा सी ते हसन फिर अपनी टीचर नूं दसदा कि तुहानूं पता मेरी शुरू तो ही हैबिट सी कि मैं लेट उठदा सी, कॉलेज भी घट आंदा सी, मेरी ये हैबिट चलती रही ते जॉब के दौरान भी इस तरह ही मेरी हैबिट चलती रही ते मैंने एक दो जगह तो जॉब तो जवाब मिल गया। फिर मेरे फादर ने भी मैंने अलग रहने के लिए कह दिता, बट विदाउट प्रॉपर नॉलेज इट इज डिफिकल्ट टू वर्क. आई ऑलवेज लाफ्ड एट दोज पीपल हु वर हार्ड वर्कर्स. आई यूज्ड टू मेक फन ऑफ देम एंड कॉल देम नर्ड्स. हसन दसदा है कि वो ज्यादातर जिहड़े लोग मेहनत करते सी उहदे नाल दे स्टूडेंट भी उन्हां नूं नर्ड्स किया करदा सी। पर वो कहता हुण मैनूं पता लगता है कि बिना मेहनत तो बिना रेगुलरिटी तो कोई भी जिंदगी दे विच कामयाब नहीं हो सकता. फाइनली माई फादर गॉट सो फेड अप ही टोल्ड मी टू स्टे सेपरेटली. मेरे पिता ने भी मैनूं अलग रहने कह दिता. माई स्टेट टूडे इज द रिजल्ट ऑफ माई ओन हैबिट्स. अज जिहड़ी मेरी आदत आ वो मेरी आपदियां हैबिट्स करके आ. आई फेल्ट सॉरी फॉर हसन. हुण टीचर नूं हसन ते बहुत तरस आ गया सी. हू विद ऑल हिज इंटैलीजेंसी एंड गुड नेचर कुड नॉट मेक इट. जेड़ा बहुत इंटैलीजेंट सी, अच्छी नेचर सी, पर कुछ भी ना बन सकिया. हसन, यू नो वर योर फॉल्ट्स, यू कुड हैव इंप्रूव्ड एंड मेड इट बेटर लाइफ फॉर योरसेल्फ. हसन की टीचर ने कहा कि हुण तैनूं तेरियां गलतियां पता नहीं, उन्हां नूं सुधार ते अपनी बेटर लाइफ कर. इहदी कोई एज नहीं हुंदी, तूं इस एज दे विच भी डिसअपॉइंट ना हो. You may have lost a battle, but you can still win the war. तू एक छोटी जी लड़ाई बेशक हार गया होगा, पर हले जंग तू जीत सकता है. मैडम ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड. वो कहता कि मैडम जिहड़ियां पुरानियां आदतां ने औखियां जांदियां ने, बट हसन इट इज पॉसिबल टू चेंज योर हैबिट. अपनी हैबिट्स चेंज करनियां संभव होंदियां ने, क्योंकि कुछ भी यही नहीं हैगा जिहड़ा इम्पॉसिबल है. तू अपनी विल पावर नूं, अपनी इच्छा नूं जागृत कर. Excellence does not come by accident but by practice. वो कहते जिहड़ी excellence आ, जिहड़ी बहुत ज्यादा अपने विच इंटैलीजेंसी आ, काम करन दी जिहड़ी वधिया योग्यता है, हमेशा प्रैक्टिस दे नाल आउंदी है. आई कुड सी ए ट्विंकल इन हिज आईज. वो टीचर कहती मैं उहदी अखां दे विच चमक देख सकती सी. I thought I was saw a glimpse of the young bright Hassan. I will try my best, madam. He promised as he rose to leave. जिवें वो जान लग्या उन्हें मैंने प्रॉमिस किया कि मैडम मैं अपना पूरी कोशिश करांगा. आई हैव नॉट मेट हसन सिंस दैट डे. आई होप टू बम्प इनटू हिम अनएक्सपेक्टेडली वंस अगेन एंड दिस टाइम फाइंड हिम हैप्पी एंड सक्सेसफुल. सुधा मुक्ति अंत वाली लाइनां दे विच अपने दिल की इच्छा रखती है. वो कहती कि मैं उदों बाद हसन नहीं मिली, पर मैं अजे भी उम्मीद करती हाँ कि हसन मैनूं फिर अचानक ही मिल जाए ते इस बारी वो एक वधिया
इंसान बनया होगा। आई होप तुम हसन की स्टोरी समझ आ गई होगी। इनू रीड करो दोबारा, जो तुम घरे चैप्टर पढ़न लगो हरेक चीज को समझने की कोशिश करो, क्योंकि आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है चैप्टर के विचों कितों भी आउंदे। ओके, ऑल द बेस्ट।